यस्टरडे प्रैक्टिस करो, मेरे साथ जुड़ जाओ। सबसे पहले अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर लो, जो मैं पूछ रहा हूं हिंदी में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो फटाफट। आपने 2 दिन में काम को कैसे पूरा किया? हाउ डिड यू डू दिस वर्क विद इन 2 days? मैं जानता हूं आप इस काम को 2 दिन में कर सकते हो। आई नो यू कैन डू दिस वर्क विद इन 2 days। क्या आपको लगता है आप ये कर सकते हो? डू यू थिंक यू कैन डू इट? चलो सुनता हूं मैं कुछ स्टूडेंट्स को, देखता हूं आपका डायनेमिक परफॉर्मेंस, कि आप लोग किस तरीके से बोलते हैं। सो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन संदीपन एंड पूजा। लेट्स सी हु इज गोइंग टू विन, हु इज गोइंग टू ट्रांसलेट वेल। सो पूजा, यू हैव टू ट्रांसलेट विद संदीपन। यू गॉट मी? यस सर। ओके, मैं तैयार नहीं हूं। I am not ready. आई एम नॉट रेडी। मैं तैयार था लेकिन आपने मुझे बुलाया नहीं। I was ready, but वाज you रेडी बट यू डोंट कॉल मी। यू डोंट या यू डिडंट? didn't. Yes, we are talking about past, and in the past we have to say you didn't call me. आपको वहां जाना पड़ेगा। You will have to go there. You will have to go there. आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। You will have to learn English. तो लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? Why are you learning English? लर्निंग इंग्लिश। क्या आपको लगता है आप ये कर सकते हो? Do you think that? Do you think? So you can do it? Do you think you can do it? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। Yes, I can do it. मुझे जाने दो। Let me go. Let me go. मैं आपको नहीं जाने दूंगा। I will not let you go. I will not let you go. Excellent. I will not let you go. संदीपन is right here. मैं आपको वहां बिना परमिशन के नहीं जाने दूंगा। I will not let you Will not let you go without permission. I will not let you go there without permission. मैं जानता हूं आप मुझे बिना परमिशन के वहां नहीं जाने देंगे। I know you don't I know you will will not not let me go without permission. I know you will not let me go there without permission. आपने पढ़ाई कैसे करी? How did you study? How did you study? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? Why are you studying? Why are you studying? आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। You will have to study. You will have to study. क्या आप यहाँ आ सकते हैं? Can you come here? क्या क्या आप बोलेंगे मेरे साथ? Will you speak with me? नहीं, मैं आपके साथ नहीं बोल सकता क्योंकि आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं। No, I can't speak with you because you are speaking very fast. Because you are speaking very fast. सुनो, Listen, listen, सुनो, समझो, फिर बोलो। listen, understand, then speak. Stand and speak. Listen, understand, then speak. Okay, अब आप क्यों जा रहे हैं? Why are you going there? Going there. आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? Why are you studying? Learning. क्या आपको लगता है पढ़ाई कर सकते हैं? Do you think you can study? You can Do you study. think you can study? मैं जानता हूं मैं पढ़ाई कर सकता हूं। I know I can study. I can study. I know I can study. तुम्हें बोलने की जरूरत है। You need to to speak. speak. तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। You need to go there. तुम वहां क्यों जा रहे हो? Why are you going there? Why are you going there? तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? Why are you studying? Why are you studying? Why are you studying? Why are you studying? चलिए, that's very good. So you two have spoken very well. Pooja, first let me know where are you from? I am from Odisha, sir. Okay. And Sandeepan, you are from? I am from Howrah. Havra, From West West Bengal, Bengal. right? Yes, sir. Okay, okay. So Sandeepan is from West Bengal. Pooja is from Odisha. Right, right. She's from Odisha. Right, right. Okay. मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। I will not go there. आप वहाँ कैसे गए? How did you go there? आपने क्या किया? What did you do? आप क्या कर सकते हो? What can you do? आप क्या कर रहे थे? What were you doing? इधर आप अभी पंक्चुएशन मार्क को की इंपॉर्टेंस को सबसे पहले समझे। व्हाट द पंक्चुएशन मार्क इज ऑल अबाउट। क्या होता है स्टूडेंट्स की इंग्लिश में जब हम राइटिंग वर्क करते हैं, नॉट ओनली इन इंग्लिश, इन एनी लैंग्वेज, whenever we write something we use some punctuation marks because these marks shows the exact meaning what you are talking about, and if you misused them, if you misplaced them, then they give the different meaning. देखो मैं आपको यहां पर 2 चीजें बताता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, उसे रोको, मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो। इन दोनों वाक्यों को आप ध्यान से देखिए। जिनको हिंदी पढ़ते नहीं आती है वो अपनी भाषा में इसको लिख लें। उसे रोको, फिर कॉमा लगा है, मत जाने दो, और दूसरा लिखा है उसे रोको मत जाने दो। तो जिस तरीके से वो लिखा है ना, वैसा मैं उसको पढ़ भी रहा हूं।
मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि उसे रोको मत जाने दो। इसका मतलब यह हो रहा है कि भाई उसे रोको मत जाने दो, मतलब यहां पर आप सामने वाले को रुकने का बोल रहे हो, उसको रोक लो मत जाने दो। और दूसरा वाला सेंटेंस है उसे रोको मत जाने दो, मतलब यहां कॉमा आपने मत के बाद लगाया, यहां कॉमा मत के पहले लगाया। तो जिसके पहले आपने कॉमा लगाया वो एक सेंटेंस है और कॉमा के बाद में एक नया सेंटेंस है। ऐसे ही एक नया सेंटेंस ये है और उसके साथ में ये नया सेंटेंस जुड़ा है। तो ये जो मार्क आपने लगाया है, दिस मार्क इज कॉल्ड पंक्चुएशन मार्क। तो आप जो है सबसे पहली चीज अपने दिमाग में ये फिट करें कि पंक्चुएशन मार्क से आपके सेंटेंस में एक्यूरेसी आती है। अगर आपने गलत पंक्चुएशन मार्क को गलत जगह फिट कर दिया, देन यू विल हैव अ डिफरेंट सेंटेंस, you will have a different meaning and maybe sometimes the meaning is going to be very much different. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पंक्चुएशन मार्क हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। तो हम सबसे पहले पंक्चुएशन मार्क को समझते हैं कि भाई कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क होते हैं। तो एक मार्क इसे कहते हैं फुल स्टॉप। क्या कहते हैं भाई? फुल स्टॉप। अच्छा, फुल स्टॉप क्या? किसी भी चीज को कहीं खत्म कर दिया हमने, फुल स्टॉप लगा दिया। हिंदी में फुल स्टॉप ऐसा लगता है, एक लाइन ऐसी खत्म हो जाती है सेंटेंस के पास में, तो ये फुल स्टॉप हो गया। लेकिन इंग्लिश में फुल स्टॉप जो होता है स्टूडेंट, सिर्फ एक डॉट लगाना होता है और डॉट भी लगाने का नियम होता है। जैसे आपने कहा शी इज गोइंग टू स्कूल। अब मुझे बताइए डॉट यहां लगाएंगे कि शी इज गोइंग टू स्कूल बीच में लगाएंगे? बताइए कौन सा वाला डॉट सही है? ए वाला डॉट सही है या बी वाला डॉट सही है? यहां लगा हुआ डॉट सही है या फिर यहां ऊपर लगा हुआ डॉट सही है? बताइए, ए वाला डॉट सही है, बी वाला? यस, ये वाला डॉट सही है, ये वाला नहीं है, ये गलत है। आपको ध्यान देना है कि ये जो लाइन जिसके ऊपर आप लिख रहे हो ना, ये लाइन से सटा हुआ आपका डॉट आना चाहिए, राइट? तो ये इस तरीके के कुछ पंक्चुएशन के नियम है कि भाई पंक्चुएशन मतलब आप समझो what you are writing and what you are giving। फुल स्टॉप लगा दिए मतलब बात खत्म हो गई। नाउ वी विल बिगिन विद अ न्यू सेंटेंस। अब बात आती है कॉमा की। ज्यादा नहीं, मात्र 5 मिनट के अंदर सारे पंक्चुएशन मार्क बता दूंगा, ज्यादा कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो बनाया यूट्यूब पर, देख लेना, समझ में आ जाएगा। कॉमा की बात करता हूं तो कॉमा क्या होता है? कॉमा मतलब जो भी चीज आपने बोली है ना, उसको आप जब तोड़ तोड़ के बोल रहे हो, मतलब आप पॉज ले रहे हो वहां पर, सिंपली आप थोड़ी देर के लिए रुक रहे हो। देखो कैसे, जैसे आप बातचीत करने में गए कि वो यहां आई, शी केम हियर, उसने खाना खाया, एट फूड एंड लेफ्ट फ्रॉम हियर। अब यहां पर आप देखो, वो यहां आई कॉमा एट फूड एंड लेफ्ट फ्रॉम हियर। वो यहां आई, खाना खाया और यहां से चली गई। तो यहां 3 सेंटेंस थे। पहला सेंटेंस शी केम हियर, दूसरा सेंटेंस शी एट फूड, तीसरा सेंटेंस शी लेफ्ट फ्रॉम हियर। अब इन तीनों में शी कॉमन था, आप देख सकते हैं, यहां भी शी, यहां भी शी, तो ये कॉमन शी को हमने आगे लिख दिया। अरे यार मुझे बताइए, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी ऐसा है, तो इसमें से क्या कॉमन ले लोगे? x ले लोगे, क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी बचेगा, नहीं बचेगा? तो ऐसे देखो 3 सेंटेंस है, शी केम हियर, शी एट फूड, शी लेफ्ट फ्रॉम हियर। इसमें से कॉमन क्या ले लिया हमने? शी ले लिया। तो ये देखो, जब 2 सेंटेंस यहां पर जुड़ रहा है तो बीच में आपने क्या लगाया? कॉमा लगाया। आप मार्केट गए, मार्केट से आपने कई प्रकार की चीजें खरीदी, तो मैंने कहा व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव बॉट फ्रॉम द मार्केट? तो सर आई बॉट अ कॉपी, कॉमा पेन, कॉमा बोला नहीं जाता, कॉमा इज नॉट स्पोकन वाइल स्पीकिंग, रिमेंबर इट, इट इज रिटन, इन द रिटन वी हैव टू शो। क्योंकि कोई भी चीज बोलते वक्त तो आप क्या रुक जाते ना वहां पर कि मैंने पेन खरीदा, कॉपी, पेंसिल और एक बुक खरीदी। तो देखो ये जो पेन, पेंसिल, ये जो हल्का हल्का सा पोज ले रहे हो ना, वहां कॉमा लगाना है। और लास्ट में जो लिखते हो ना, उसके साथ एंड लगाना, उसके साथ कॉमा मत लगाना। अगर आपने ऐसा लिखा कि आई बॉट या परचेज, जो भी यूज करना चाहो कर सकते हो, आई परचेज्ड अ पेन, अ कॉपी एंड अ बुक,
ठीक है। अब अगर मान लो आप ऐसा लिखे कि आई परचेज अ पेन, अ कॉपी एंड अ बुक, यहां भी आप ऐसा लगा दो कॉमा, तो ये गलत हो जाएगा। अननेसेसरी नहीं लगाना। जब आपने यहां पर क्या लगा दिया, एंड लगा दिया, मतलब इसका सवाल ही नहीं फिर उठता है, फिर नहीं लगाना है। आ रही बात समझ में? ये बहुत छोटे छोटे नियम है स्टूडेंट्स, दैट वी मस्ट नो, क्योंकि इससे हमारी लैंग्वेज में एक्यूरेसी आती है, हमारी लैंग्वेज अलग ही लगती है। और स्पेशली जो भी स्टूडेंट्स को अपने राइटिंग स्किल को सुधारना है, दे मस्ट नो हाउ टू यूज करेक्ट पंक्चुएशन ऑन द करेक्ट प्लेस। इसके बाद में बात करता हूं मैं, एक हो गया फुल स्टॉप, एक हो गया कॉमा, ये भी ले ही लो अब अभी, फुल स्टॉप, कॉमा, एक आप ले लो सेमी कॉलन, एक आप ले लो कॉलन, एक आप ले लो क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एक आप ले लो एक्सक्लेमेशन मार्क, आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए। चलो इसके अलावा और भी कुछ आएगा तो देखेंगे उसको, पहले हम इसको समझते हैं ये क्या चीज है। अब सेमी कॉलन कहां लगाते हैं भाई? कॉमा तो आपने लगा दिया, सेमी कॉलन वहां पर लगाते हैं स्टूडेंट्स, एपिस्ट्रॉपी नहीं, एपिस्ट्रॉपी तो बहुत ही अलग है। एपिस्ट्रॉपी एस का संबंध इनसे नहीं है, एपिस्ट्रॉपी एस इज डिफरेंट, ठीक है, वो अलग ही है, ठीक है ना। हाँ, ब्रैकेट्स ले सकते हो, ब्रैकेट्स ले सकते हो, ब्रैकेट्स भी आपके पंक्चुएशन की कैटेगरी में काउंट होते हैं, ठीक है ना, और वो जनरली हमको पता होता है, मैं बता दूंगा, ब्रैकेट्स भी बता दूंगा, ठीक है। तो इधर देखना आप, मैं जिस बारे में बात करता हूं, तो सेमी कॉलन क्या होता है। देखो, जब आप बात करते वक्त कोई राइटिंग वर्क करते हो, जैसे आपने कहा शी लेफ्ट दिस प्लेस, अब ये एक स्टेटमेंट आपने दे दिया कि आपने क्या कहा कि उसने इस जगह को छोड़ दिया, है ना। अब इस जगह को छोड़ने का उसका रीजन क्या था, वो बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। शी लेफ्ट दिस प्लेस, अब यहां मैं लगाऊंगा सेमी कॉलन। अब सेमी कॉलन के बाद में यहां पर आगे जो स्टेटमेंट आएगा ना, वो स्टेटमेंट जो है वो अलग हो जाएगा कुछ। मतलब आपकी भाषा में अगर मैं कहूं तो कॉमा से बड़ा पोज जो होता है वो सेमी कॉलन का होता है। कम ऑन, कॉमा से बड़ा जो पोज होता है जहां पर बात जो है बदल जाती है, वो सेमी कॉलन की होती है। देखो कैसे बदलेगी, शी लेफ्ट दिस प्लेस, and never returned, ठीक है। अब ये आप बोलेंगे सर एंड लिखा है, तो एंड के बाद इसको कैसे यूज कर दिया आपने, ठीक है भाई। वो एंड के बाद में इसलिए लिखा है, उसको समझो, ये एक सेंटेंस नहीं है। शी लेफ्ट दिस प्लेस के बाद में आपको रुकना है। देखो मैं दो सेंटेंस लिखता हूं, सेंटेंस ए, सेंटेंस बी। शी, समझना इसको, नहीं तो ये ना ये दिमाग का नहीं कर देता अच्छो का। लेफ्ट दिस प्लेस एंड नेवर रिटर्न। ये सेंटेंस भी सही है, ये सेंटेंस भी सही है। दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन दोनों के यूजेस अलग अलग है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है, दोनों के अर्थ अलग अलग है। ऊपर वाले का अर्थ देखो क्या है, शी लेफ्ट दिस प्लेस and never return. She left this place and never return. Here आप फोकस कर रहे हैं उसके कभी नहीं आने पर, क्या लगाकर, सेमी कॉलन लगाकर। और नीचे वाले में दोनों सेंटेंस को आप किससे जोड़ रहे हैं, एंड से जोड़ रहे हैं। दो साधारण वाक्य एंड से जुड़ गए, लेफ्ट वर्ब आ गई और दूसरी रिटर्न आ गई, काम हो गया। तो सेमी कॉलन लगाया कहां हमने, सेमी कॉलन हमने वहां लगाया जहां पर हमारे स्टेटमेंट को हम हाईलाइट कर रहे हो, वहां पर पॉज ले रहे हैं, रुक रहे हैं। दैट इज द यूज ऑफ सेमी कॉलन। तो ऐसा उसको समझो, तब जाकर वो समझ में आएगा। तो ये आपका होता है सेमी कॉलन, जहां पर कॉमा से बड़ा पोज जो लेते हो ना, वो सेमी कॉलन होता है, दैट इज। और बात आपकी अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इसके बाद कॉलन होता है। कॉलन दो लगते हैं, ऐसे दो डॉट, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखो दो डॉट लग गए, मतलब कैसे, आप स्टेटमेंट्स जो भी दे रहे हो, जो भी बातें कर रहे हो, उसमें ज्यादा बड़ा
पोज आप ले रहे हो, उससे भी बड़ा, मतलब कॉमा से बड़ा सेमी कॉलन, कॉलन से बड़ा कॉलन, सेमी कॉलन से बड़ा कॉलन। जैसे देखो मैंने कहा दे हैव नेवर बीन arrested but today will be hanged। ये रहा है आपका कॉलन। ठीक है भाई, समझिए इस चीज को मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहां पर आपने कॉलन लगाकर एक स्टेटमेंट को पूरी तरह से बदल दिया है। यू हैव चेंज्ड द कंप्लीट सेंटेंस। कि भाई आप चाहे तो उसको सिंपल भी लिख सकते थे, आपको यहां कुछ नहीं लगाना था, आप सिंपली भी बोल सकते थे, लेकिन अगर आपने कॉलन लगा दिया तो उसका मतलब क्या होगा कि दे हैव नेवर बीन अरेस्टेड बट टुडे विल बी हैंग्ड। उनको तो कभी अरेस्ट ही नहीं किया गया, लेकिन आज तो उनको फांसी हो रही है। उनको तो कभी अरेस्ट ही नहीं किया गया, बट आज तो डायरेक्ट फांसी हो रही है। तो आपने यहां इतना बोलने के बाद में ये जो गैप यहां पर लिया है, इस गैप को बताने के लिए, पोज को बताने के लिए सेमी कॉलन लगाते, हम लोग कॉलन लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं है, सरल है। इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क बताने की जरूरत है नहीं, जहां भी प्रश्न करते हो वहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया करो। बिल्कुल एकदम दिमाग में ऐसा रख लो कि भाई अच्छा, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं सर क्या क्वेश्चन मार्क अफर्मेटिव सेंटेंस के आगे लग जाता है? बिल्कुल लग जाता है। अगर आपने अफर्मेटिव सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो इट्स नो मोर अफर्मेटिव। यस, यू कैन डू इट। मान लो ऐसा कहा आपने किसी से, यू कैन डू इट। अब मुझे बताइए इसका क्या मतलब होगा? यू कैन डू इट। तो यहां पर आप सामने वाले से अगर क्वेश्चन मार्क लगाकर ऐसा पूछ रहे हैं तो ये एक्चुअल में अफर्मेटिव नहीं है। आप ये जानना चाह रहे हो कि आप ये कर सकते नहीं कर सकते। दैट इज, आपने जैसे बातचीत करने में कुछ फीलर्स देखे होंगे जिसमें एक आता है यू नो आई वाज देयर, सो यू नो में डू छुपा हुआ है, डू यू नो है वो। क्या आपको पता है कि भाई ऐसा लाइक फिलर्स में जहाँ पर हम बातचीत करते वक्त कुछ फिलर्स को यूज़ करते हैं सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, हमारी बात को रखने के लिए, या फिर हमारे लैंग्वेज में इंप्रेशन लाने के लिए। तो ये उसी का रूप है। तो क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन अफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर क्या क्वेश्चन है। अब बाकी क्वेश्चन स्टिक तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ। जैसे आप किसी से बातचीत करते वक्त को यू आर अ डॉक्टर, ये देखो यू आर अ डॉक्टर, आरंट यू। आरंट यू बोला है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आरंट यू बोला ना आपने तो वो एक अलग हो गया, क्वेश्चन स्टिक हो गया। लेकिन यू आर अ डॉक्टर तो बोलेगा यस यस आई एम अ डॉक्टर, राइट। आप प्रश्न नहीं कर रहे हो, आप सॉरी आप आंसर नहीं कर रहे हो, आप प्रश्न कर रहे हो कि आर यू डॉक्टर। यू आर अ डॉक्टर मीन्स आर यू अ डॉक्टर, दैट इज। चलिए कुछ कमेंट्स पेंडिंग है यहाँ पर। वी आर हैविंग पीज एंड कैरेट, रोस्टेड मीट एंड केक फॉर डिनर। वाओ व्हाट अ सेंटेंस। सी यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया सुधांशु ने, बहुत प्यारा और अच्छा स्टेटमेंट दिया कि भाई हमारे पास है पीज एंड कैरेट, ओके, रोस्टेड मीट है एंड केक फॉर डिनर, और केक है किसके लिए? डिनर के लिए। तो यहाँ पर आप मुझे बताएं कि सबसे पहले चीज़ कि आपने जितने भी कंटेंट यहाँ पर लिखे हैं सारे के सारे कंटेंट सही लिखे हैं, तो अब इसमें अननेसेसरी कॉमा आपने क्यों अप्लाई कर दिया? देयर इज नो नीड टू अप्लाई द कॉमा डियर, इट्स इनकरेक्ट। हाँ, अगर आप वहाँ पर एंड नहीं लिखते तो आपका फिर सेंटेंस होता है कि वी आर हैविंग पीज एंड कैरेट, रोस्टेड मीट, कॉमा, केक फॉर डिनर ऑल्सो। तो फिर लास्ट में ऑल्सो लगा देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? या फिर एज वेल लगा देते हैं। हो सकता है देखो आपने पढ़ा है, दैट्स ओके, बट डियर दिस इज नॉट द राइट वन। अगर आपके ये कहा जाता है कि भाई आप एंड को हटा दीजिए, तो आप एंड को हटाकर वहां पर क्या लिख सकते थे? आप कॉमा लिखते हैं और केक फॉर डिनर एज वेल, ये कर सकते थे हम।
ठीक है, कि आपसे कहा गया कि कॉमा को एंड को हटाना है हमें और सेंटेंस को कंप्लीट करना है, तो आप ये लिख दो केक फॉर डिनर एज वेल, मतलब केक भी है उसके साथ में। आप यदि एंड लगा रहे हो सो वहां पर आपको जो है कॉमा नहीं अप्लाई करना है, बिकॉज अच्छा एक मिनट, अब मान लीजिए आपने कॉमा लगा भी दिया तो उसका कोई मीनिंग निकल रहा है या फिर वो उस बात को रखने के लिए कुछ यूज हो रहा है, उसका औचित्य निकल रहा है? नहीं, कोई उसका मीनिंग नहीं है। और जब उसका मीनिंग नहीं है तो फिर हम इसको क्यों लगाएं? ठीक है, हो सकता है कि ये उन्होंने उसको लिखा है, बट आई हैव नेवर रेड दिस थिंग्स, आई नेवर टीच दिस थिंग्स टू माई स्टूडेंट्स, बिकॉज जब कोई चीज़ का कहीं यूज ही नहीं है। अच्छा मुझे बताइए, ये पेन मैं हाथ में लेकर क्यों घूम रहा हूँ भाई? बिकॉज इसका यूज़ है, मैं लिखने में यूज़ करता हूँ। इसका यूज़ नहीं है तो मैं इसको नहीं रखूँगा मेरे पास। तो जब कॉमा का वहाँ यूज़ ही नहीं है, आप एंड लगाकर सेंटेंस को सेपरेट अलग ही कर रहे हो और ये बता रहे हो कि भाई ये यहाँ पर आप खत्म हो जाएगा। जैसे आपने दुकान से क्या क्या चीज़ें खरीदी, तो आपने कहा आई बॉट अ कॉपी, अ पेन, अ पेंसिल, अ बुक एंड अ पेंसिल। तो भाई एंड लगाकर आप ये दिखा देते हो कि अब ये आइटम्स यहाँ पर क्या हो गए, फिनिश हो गए, खत्म हो गए। अब जब खत्म ही हो गए चीज़ें तो कॉमा की यूज़ ही नहीं है फिर। ऐसी बात, कोई भी चीज को पढ़े तो वी मस्ट नो द लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है ना? तो हाँ, आई एक्सेप्ट इट कि देखो कंफ्यूजन होता है हमें, लेकिन मैं चाहता हूं कि देखो कोई भी व्यक्ति ने कोई चीज कर दी तो उसके पीछे का लॉजिक भी देखना पड़ेगा हमें कि भाई इस वजह से ऐसा हुआ है। कोई भी चीज होती है उसके पीछे रीजन होता है। नथिंग हैपन्स विदाउट एनी रीजन, एवरीथिंग हैपन्स विद अ रीजन, and we should know what the reason is all about। उसका रीजन पता करना है कि भाई इस वजह से, इस कारण से ऐसा हो रहा है, that's why। नहीं हो रहा है, that's okay। चलिए कोई गल नहीं। तो कुल मिला के आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन कि भाई ये सारे के सारे मार्क को आप एक बार देख लेना, इन पर बेस्ट यूट्यूब पर भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, वो भी आप देख लेना। एक्सक्लेमेटरी मार्क की बात करूं मैं तो ऑलरेडी मैं काफी सारे सेंटेंसेस में बोल चुका हूं कई बार। वॉट यू हैव लॉस्ट योर सेल फोन, तो ये रहा एक्सक्लेमेटरी मार्क। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ये रहा एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इस तरीके से ये जो आपके पंक्चुएशन के मार्क होते हैं, ऑल दीज मार्क्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट और इनकी समझ आपको होनी चाहिए, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉमा, चलो एक और चीज सीख लो, ये भी पंक्चुएशन मार्क में आता है, इन्वर्टेड कॉमा भी। देखो ये क्या होते हैं, ये होता है इन्वर्टेड कॉमा, मतलब ये यहां से शुरू होता है, यहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब इन्हीं का सेंटेंस लेते हैं कि इन्होंने सेंटेंस लिखा है टू कॉल फॉर, अच्छा टू कॉल फॉर द मीटिंग, मतलब मीटिंग के लिए बुलाया, ठीक है। और फिर क्या किया, मीटिंग को बुलाकर, कब बुलाया मीटिंग के लिए, ऑन जुलाई 11, चलो ठीक है, जुलाई 11 को बुलाया। एंड देयरफॉर, और इसलिए। अब देयरफॉर के बाद में आपको आगे भी कुछ न कुछ दिया होगा, क्योंकि देयरफॉर क्या होता है, देयरफॉर एक कंक्लूडिव वर्ड होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो कि वहां यूज होता है जिसके बाद में कोई स्टेटमेंट देना होता है हमें, ठीक है ना, जिसके बाद में हमें कोई स्टेटमेंट देना होता है। तो ये जो आपने यहां पर लिखा है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमा, जिसके अंदर जो स्टेटमेंट्स कहे जाते हैं, जैसे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हम लोगों ने पढ़ाया था, तो हम लोगों ने आपको सिखाया था कि ही सेड कॉमा आई एम गोइंग, तो उसने जो स्टेटमेंट दिया आई एम गोइंग, इसको आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करना है। ये स्टेटमेंट है जो उसने दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूं, ही सेड उसने कहा, दैट्स ओके।